Dear students, today we are going to start 14th chapter Sources of Energy. Dear students, it is a very important topic. What is energy? Dear students, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, many energies we have seen. Now, what are the sources of energy and which energy we are using? Whenever we are hearing a word energy, only one thing comes in our mind, that is, in the entire universe, energy cannot be destroyed nor it can be generated, just it can be transferred from one form to the another form. एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही हम उसको जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं. देखिए, एक बहुत ही बड़ी एग्जांपल लेते हैं. इफ आई थ्रो दिस चॉक फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, आफ्टर फॉलिंग डाउन it will produce a sound energy. You will hear the energy that it chalk breaks or it touches the tiles, floor, marbles, anything. If it produces sound energy, from where does chalk get sound energy? It gets the sound energy from the potential energy, as it was at a certain height. Do you remember the formula mgh? Okay, that is the potential energy. So from potential energy it has been transferred to the sound energy. Okay, I hope this is clear example in your mind. Now, moving ahead with some certain examples related to the transformation of energy, you can see, yes, when you switch on the fan, electrical energy is converted into mechanical energy. Mechanical energy means it has started rotating when you provide the electrical energy. Okay, so this was the work. Second thing is, when you suppose you have seen hydro power plant at the Narmada dam, hydro power plant, what happens there? They converts the fall of water, that is potential energy, into electrical energy. So these are certain examples of conversions of energy in from one form to the another form. Dear students, चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ एनर्जी. बहुत सारे सोर्सेस है एनर्जी के. कौन सा बेस्ट है, कौन सा हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कब तक यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी होती है. सपोज nowadays we are using so much petrols. We are using means I am talking about worldwide. पेट्रोल की बहुत सारी ज़रूरत है, इसीलिए अभी हम किस और शिफ्ट कर रहे हैं हमारा सब फोकस इलेक्ट्रिकल पे. अभी कुछ सालों बाद, नियर अबाउट 5 to 10 years, may science will progress. You will see most of the cars, bikes, trains, each and everything, most of thing will be using electrical energy. Right now they are using petrol, diesel, that CNG, that sources of energy. देखिए, पहले हम पेट्रोल डीजल का मैक्सिमम यूज करते थे, फिर पता चला कि पेट्रोल डीजल कुछ सालों बाद मीन्स आफ्टर 100 और 200 ईयर, कुछ साल यहाँ पे 2-3 साल नहीं है, 100 और 200, आफ्टर 100 और 200 ईयर इट मे गेट एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो सकता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया उसे यूटिलाइज कर रही है. तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, सर हम कहाँ 100-150 या 200 साल जीने वाले हैं, अभी पेट्रोल है जितना है हमें मिल रहा है उतना हम यूटिलाइज कर रहे थे, बाकी देखा जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, ये
थियरी जो है, ये आपका थिंकिंग है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप आने वाली स्पीसीज, आने वाले जनरेशन्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप मैक्सिमम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हो, उससे क्लाइमेट एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ड्यू टू दैट वी आर सफरिंग ग्लोबल वार्मिंग। I am delivering the lecture, limited students are watching this lecture, and I am using the word you are, and I am myself using. Dear students, we are not only responsible, each and everyone in this entire world is responsible for the global warming, but if we will change, some will change. अगर हम यही सोचेंगे अगर वो भी ऐसा ही कर रहा है मैं क्यों चेंज करूं, तो सभी ऐसा ही सोचने लगेंगे. सो we should have some change. If possible, do not use unnecessary vehicles. अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने व्हीकल्स को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि और कोई अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है. एक है आपके पास इलेक्ट्रिक यो बाइक्स जो है वो अवेलेबल हो, तो उसका भी हमें लिमिटेड यूज़ ही करना है. इलेक्ट्रिकल है, सस्ता है, तो चलो लेके घूम लेते, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, many things are to be discussed on this topic and it can consume much time also. So let us go through each and every point. Sources of energy, उसमें पॉइंट है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. आप किसे कहेंगे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी तो पहले हम उसे कहेंगे जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे. हमें छोटी सी क्वांटिटी का अगर हम उस सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, सो दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ. सपोज you are using 1 liter of petrol, 1 liter of petrol and you are getting the mileage of 40. You are changing the bike, 1 liter of petrol you are getting the mileage of 60. One more bike, 1 liter of petrol you are getting mileage of 80. Which bike should you prefer? You should prefer such a bike which is comfortable and give more mileage, because 80 rupees per liter gives 80 kilometer, means 1 rupee 1 kilometer, and 80 rupee per liter gives you 40 kilometer mileage, means 1 kilometer have approx 2 rupees value. So dear students, this thing, small things you should keep in your mind for the calculation. So good source of energy is you should get more energy from a limited source. Second thing, it should be easily available. We in our town, as we are talking about Mohua, we are knowing CNG is the best source right now, but we are not having an online petrol pump for CNG. Sorry, word not petrol pump but CNG pump. We are not having CNG pump online, only one pump. So much rushes are there, so you shift to the अनदर सोर्स. तो आप सोच रहे कि अभी चलो CNG यूज नहीं करना है, चलो हम पेट्रोल से अपना काम चला लेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, इजीली अवेलेबल हो वही गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है. दूसरी बात, उसका सोर्सेज का इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो, वो भी बड़ी बात है. किसी जगह से वो सोर्सेज को हम यहाँ पे ला रहे हैं अपने सिटी में, तो वो इजीली यहाँ पे आना चाहिए. आप देख सकते हैं हाईवे रोड्स पे आपको बहुत सारे कंटेनर मिलेंगे जो लिखा होता हाईली इन्फ्लेमेबल. वो ऐसे सब्सटेंस रहते हैं उसके अंदर जो जल सकते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल है. तो कभी भी वो रोड पे कुछ एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस है. एक्सीडेंट्स में नॉट द क्रैशिंग ऑफ द ट्रक एंड समथिंग एल्स, बट वही अपने आप जलने लगेगा. अभी आपने शायद देखा होगा, अभी अहमदाबाद के पास एक LPG का बहुत बड़ा सा ट्रक आ रहा था, सडनली उसमें से ब्लास्ट होने लगे, तो LPG सिलेंडर्स ऐसे हवा में उड़ने लगे थे. जहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से कार गुजर रही थी, उस कार के ऊपर वो LPG सिलेंडर फटा, तो उसमें जो फैमिली था वो पूरा उस
पूरे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गई. सो दिस इंसिडेंट्स हैपन समटाइम. सो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए. सो दैट इज अ मेन थिंग फॉर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नाउ मूविंग अहेड डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वर्ड कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल का मीनिंग ये है नॉन रिन्यूएबल. उस वो ऐसे सोर्सेज से बना हुआ है जिसको हम रिन्यू मीन्स दोबारा यूज नहीं कर सकते या फिर बाद में उसे जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है, वो लिमिटेड स्टॉक में रहता है, उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल. दैट इज नॉन एज फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल में क्या आएगा प्यारे बच्चों? फॉसिल फ्यूल में आएगा वुड. फॉसिल फ्यूल में आएगा पेट्रोलियम. फॉसिल फ्यूल में आएगा कॉल. फॉसिल फ्यूल में आएगा. सो दिस आर द फॉसिल फ्यूल. अगर हम कैटेगरी वाइज डिस्कशन करें तो उसमें पहला है थर्मल पावर प्लांट. धुआरण कच्छ के अंदर आता है. थर्मल पावर प्लांट जो गुजरात में है, उसी की हम अभी बात कर रहे हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं कॉल का, मीन्स फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सी डिमांड है, उसके बिना कुछ चल नहीं सकता, तो हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज हाइड्रो पावर प्लांट. जो मैंने बोला नर्मदा डैम के ऊपर, सरदार सरोवर. लेकिन इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है. पहले तो थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे. कॉल जो है वो फॉसिल फ्यूल है, उसका लिमिटेड स्टॉक है. एक स्टॉक को आप खत्म करके आप दूसरा स्टॉक बढ़ा रहे हो, तो दैट इज नॉट द स्मार्टनेस डियर स्टूडेंट्स. सेकेंड थिंग इज हाइड्रो पावर प्लांट. हाइड्रो पावर प्लांट में डैम की हाइट्स बहुत सारी होनी चाहिए, ताकि ऊपर से पानी टरबाइन पे गिरे, टरबाइन घूमे और एनर्जी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो. कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बहुत आएगा, दैट इज अ मेन थिंग. बहुत सारी लैंड एक्वायर करनी पड़ती है. दूसरा, अगर कोई इंसिडेंट हुआ, अकस्मात होता है, डैम का टूटना ये वगैरह, तो पूरे बहुत सारे गांव को नुकसान हो सकता है. सो दिस टू ऑप्शंस वी आर यूजिंग, ये दोनों ऑप्शन अभी है हमारे पास, इसका हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं. हमें ये भी पता है इसके ड्रॉबैक्स है, लेकिन और कोई अल्टरनेट जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इसी से काम चला रहे हैं. फिर बात करते हैं बायोमास की, फिर विंड एनर्जी की. ये बायोमास आपको पता होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आपको इसे आप गोबर गैस प्लांट भी कह सकते हैं. इसमें हमको क्या करना है, काउ डंग है, बफेलो डंग, इन शॉर्ट एनिमल वेस्ट है. फिर खाने का जो वेस्ट है उसको आपको स्लज बनाना है. उसे एक पिट के अंदर रखना है, खड्डा खोदना है और वहाँ पे इसका सब रखना है, ताकि इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा. वो कंपैरेटिवली एलपीजी जैसा ही काम करता है मीथेन गैस. सो मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, उसका जो वेस्ट निकलेगा उसे आप फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बायोमास. ये है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन करेगा कौन? इट्स डिपेंड अपॉन द लेबर. आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते, लेकिन कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके पूरे गांव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकती. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विंड एनर्जी. विंड एनर्जी तो आपने देखा ही होगा. अगर आप घूमने के लिए जाते हो, अगर हम जो हमारे टाउन की ही बात करें, भवानी मंदिर, तो वहाँ पे आपने विंड फार्म देखे हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉस्टली है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत ही कॉस्टली है. डिपेंड्स अपॉन द विंड की स्पीड पे डिपेंड्स करता है. नॉर्मली इसकी स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर्स पर आवर.
और 16 किलोमीटर पर आवर। अगर उतनी स्पीड है तभी ये तीनों ब्लेड घूम सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाने का कॉस्ट भी बहुत आता है, इसका मेंटेनेंस का भी कॉस्ट बहुत आता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रक में एक ब्लेडर आता है इसका। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली डियर स्टूडेंट्स। आपको लगता है ये विंड है, ये तो फ्री में मिल रहा है। विंड फ्री में मिल रहा है, लेकिन जो सेटअप है उसका एक्सपेंस बहुत हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो वो एनर्जी। वो तो एक ही है, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो है सोलर एनर्जी, उससे आप सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, सोलर हीटर, so many things you can use of a solar energy, and this will work. अभी मोस्ट ऑफ अपने घर पे सन रूफ, सन टॉप बना रहे ताकि इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हो सके। सो दैट इज अ गुड सोर्स। और बहुत सारी एनर्जी हमें सी से मिल रही है। एक है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेव एनर्जी, तीसरा ओशन थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है। ये न्यूक्लियर एनर्जी हमें सी से नहीं मिल रही है। मैंने ऐसा ही एक पॉइंट रहे टेक्स्ट बुक में था इसलिए लिखा था। न्यूक्लियर एनर्जी है जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से हमें मिलती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो आपको पता ही है, यूरेनियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार आपने कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्टिंग होता है वही होता है, फिर बहुत ढेर सारी एनर्जी हमें मिलती है। सन जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही काम कर रहा है। ठीक है, छोटे छोटे हाइड्रोजन हीलियम मिक्स होते हैं और बहुत ही एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक ही खतरा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। क्या, सॉरी, नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, माय मिस्टेक। इसमें से जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसका क्या करे, उसे कहाँ डिकम्पोजिट करे। बिकॉज इसे अगर आप बहुत ही डीप खड्डा करके भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स को आप छुपा देंगे अंदर, फिर भी रेडियो एक्टिविटी बाहर आएगी। आप इस एलिमेंट्स को जला देंगे, सपोज यूरेनियम को आपने जला दिया, फिर भी उसे कुछ नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आपने उसको मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक शॉक सब दिया, उसे कुछ नहीं होगा, वो अपना रेडियो एक्टिविटी शुरू ही रखेगा। तो ये खतरा है, दिस इज न्यूक्लियर हैजार्ड। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे सिचुएशन होता है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, आप साइंस पढ़ेंगे तब आएगा। क्रिटिकल मीन्स के इक्वल्स टू 1। अगर रिएक्टर का के इक्वल्स टू 1 वैल्यू है, इट मीन्स ईच एंड एवरी फंक्शन इज नॉर्मल। जैसे ही बिलो 1 जाएगा, इट्स नॉट नॉर्मल, रिएक्टर विल स्टॉप, you will lose your money. Third, if it is more than 1, it is supercritical, it will blast. And dear student, once it blast, you have seen the blast done by America on Japan. जिस जगह पे इसे सेटअप किया गया होगा वहां पे ब्लास्ट हुआ, तो दूसरे ही दिन आपको यही पता चलेगा यहाँ पे गांव था, अब नहीं है। टोटल पॉपुलेशन नियर द रेडियस डिपेंड्स अपॉन इट्स कैपेसिटी विल बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज वेरी हार्मफुल। इफ यू यूज इट केयरफुली, इट इज वेरी यूजफुल। नाउ dear students, I have tried to explain you the sources of energy. Now we will see each and every points in the animation form.